Today we will start SST history part of class 8 chapter number 3 ruling the countryside. In this chapter we will come to know about colonial agrarian policy, permanent settlement, Mahalwari system, Ryotwari system, impacts of revenue settlements, cultivation of cash crops, Indigo rebellion. All these are the topics related in this chapter. So students, let me tell you one thing कि बिफोर ब्रिटिश केम, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उस समय कंडीशंस जो है पीजेंट्स की वाज वेरी गुड. उस समय पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. Actually, they were leading a peaceful life. The villages were self-sufficient as they could produce everything in their own village they needed. They pay a small portion of their produce to king as a tax. और वो थोड़ा मोड़ा जो भी प्रोड्यूस होता था जो प्रोड्यूस होता था उसका कुछ पार्ट जो है वो एज अ टैक्स वो किंग को देते थे. ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी, और जब कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती थी तो किंग रिड्यूस द रेवेन्यू. और क्या करते थे, कई बार तो ऐसा होता था कि रेवेन्यू नहीं भी लेते थे. However, the coming of the British changed everything. सब कुछ बदल गया. अगर जब ब्रिटिश आए तो सब कुछ ही चेंज हो गया. और इन द प्रीवियस चैप्टर और हमने ये चीज़ पढ़ा है उसमें कि द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. सो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब वो लोग यहाँ आए तो उनको पूरी तरह से राइट मिल गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का. द कंपनी नीडेड money to buy goods, to run administration, to maintain army and to manage war expenses. What is expenses here? Expenses is खर्चा पानी. Means वो जो war के expenses होते थे, जो administration को चलाने के लिए, goods खरीदने के लिए और army maintain करने के लिए एक major amount चाहिए था उन्हें, गवर्नमेंट को, मतलब कंपनी को, जिससे कि वो कहाँ से वो अमाउंट आया, वो मनी कहाँ से आई, वो रेवेन्यू के थ्रू आई उनके पास. The ultimate aim of the company was to earn money. सिर्फ वो पैसे कमाना चाहते थे. Since land revenue was the main source of income, the British thought of earning more from revenue. So they revised or changed the whole revenue system. The company introduced new revenue system और उस revenue system में फर्स्टली था परमानेंट सिस्टम, देन महालवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम. ये 3 सिस्टम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. देन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. दिस इज द पिक्चर. ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे दीवारी ले रहे हैं. ये उस समय की पिक्चर है मुगल एम्परर से इन 1765. ये रॉबर्ट क्लाइव की एक हैबिट थी कि कोई भी इवेंट होता था, कोई भी ओकेजन होता था तो वो पेंटर से उसकी पेंटिंग बनवा लेते थे. द कंपनी बिकम्स द दीवान. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent, with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a great setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. Here, 12th August 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है दिया. ठीक है, दीवानी प्रोवाइड किया. और कहाँ की दीवानी? दीवान ऑफ बंगाल बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी को. और ये जो एक्चुअल इवेंट है, ये जो है जो एक्चुअल इवेंट था वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था. नॉर्मल सा एक टेंट था, उसमें हुआ था, जहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस एज अ विटनेस खड़े थे. बट पेंटिंग जो ऊपर बनी हुई है ये ऐसे शो कर रही है जैसे कोई ग्रैंड सेटिंग हो रही हो, कोई बहुत ही बड़ा मैजेस्टिक ओकेजन हो रहा हो. आपको इस पेंटिंग में ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं कोई ग्रैंड
मैजेस्टिक ओकेजन है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की आदत थी कि वो अपने लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पेंटिंग में उतरवा लेता था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। एज दीवान, अब दीवान बन गई कंपनी, तो कंपनी ने क्या किया कि उनको फाइनेंशियल एडमिनिस्टर बन गई वो, एक्चुअली चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। और क्योंकि वो पूरे टेरिटरी को, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ, अब वो क्या चाहते थे, अब वो टोटल फाइनेंशियल टेरिटरी बन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, तो अब उनको क्या चाहिए था, अब वो सोच रहे थे कि लैंड को भी एडमिनिस्टर किया जाए और उससे रेवेन्यू, उसको ही एक रेवेन्यू रिसोर्स बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये कैसे हो सकता था, ये तब हो सकता था जब दिस हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ, और ये इस तरीके से किया जा सकता था जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिले, ताकि वो अपनी कंपनी के ग्रोइंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। हियर एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा पानी, मतलब खर्चा पानी जो भी कंपनी का एक्सपेंस हो रहा था मेंटेनेंस में और व्हाटएवर, तो उसके लिए उनको रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, और जिसकी वजह से उन्होंने लैंड को एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया, ताकि वो कुछ भी बेच सकें और कुछ भी जो उनकी ज़रूरत हो उसको वो खरीद सकें। ओवर द years of the company, over the years the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, अब यहाँ पे एलियन पावर कहा गया है। व्हाट इज द एलियन पावर? एलियन पावर वो है, मीन्स वो लोग एक्चुअली बाहर से आए हुए थे, जो ब्रिटिश थे वो बाहर की कंट्री के आए हुए थे, आउट ऑफ द कंट्री के थे वो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एलियन पावर। और उनके पास पावर थी, वो पूरे तरीके से पावरफुल थे, दैट्स व्हाई उनको एलियन पावर कहा गया, जो कि चाहते थे हर लोकल रूलर को और हर जो भी जिन्होंने भी रूल किया कंट्री साइड पर, उनको पैसिफाई करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिफाई? पैसिफाई मीन्स शांत करना, पीस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पैसिफाई। तो वो यहाँ पे चाह रहे थे कि सबको पैसिफाई कर दें, जो भी रूल कर रहे हैं कंट्री साइड में या लोकल पावर्स हैं वो सबको कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि वो अथॉरिटी और प्रेस्टीज इंजॉय कर सकें। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be eliminated. अब उनको completely, entirely eliminate नहीं किया जा सकता था, तो उनका कहना था कि उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, बेटर रहेगा कि हम उनको पैसिफाई कर दें, शांत कर दें, कुछ ना कुछ ब्राइब करके या कुछ लैंड एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के कुछ इस तरह से उनको शांत कर दें। तो अब ये कैसे हो सकता है? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। अब यहाँ पे कॉलोनाइज क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था। कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनाइज करना मतलब किसी पर कंट्रोल कर लेना, पावर अपना जमा लेना। कंट्री साइड पर उन्होंने कंप्लीटली कॉलोनाइजेशन कर लिया था, अपना पावर जमा लिया था, प्रभुत्व जिसको कहते हैं। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, क्योंकि वो चाहते थे, अब वो क्या सोच रहे थे कि कैसे कॉलोनाइज किया जाए और कैसे रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ाई जाए, किस, और उनका कहना था कि वो राइट्स जो पीपल की राइट्स हैं उनको वो रीडिफाइन करें, मतलब वापस से उनके राइट्स रिन्यू करें, कुछ नए राइट्स दें, कुछ पुराने राइट्स को हटाया जाए पीपल के, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करें जो वो चाहते हैं। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी के लिए रेवेन्यू, ठीक है। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, अब कंपनी दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, फिर भी वो अपने आप को एज अ ट्रेडर समझ रही थी, व्यापारी समझ रही थी, ठीक है। It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. मतलब ये रेवेन्यू तो कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं करना चाहते थे, और ताकि कलेक्शन का और मतलब कोई भी कलेक्शन का सिस्टम नहीं बनाना, कोई रेगुलर सिस्टम नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब ये यहाँ चाहते थे कि इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे ये लोग कंपनी वाले कि किस तरीके से हम रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और हम एबल हो सकें फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ को खरीदने में चीप से चीप रेट पर। मतलब
बहुत कम से कम दामों पर ये कॉटन और सिल्क खरीदना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू के थ्रू पाना चाहते थे। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. यहाँ 5 साल के अंदर अंदर ही ये जो ब्रिटिश कंपनी ने ये जो गुड्स अंदर ले आए थे ये लोग इंडिया के अंदर, उसके वैल्यू बढ़ा दी, डबल कर दी। बंगाल में उसकी वैल्यू बिल्कुल डबल कर दी, बहुत महंगा कर दिया। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया। जो कंपनी है वो 1865 से पहले परचेज करती थी इंडिया से गुड्स बाय इंपोर्टिंग, और क्या इंपोर्ट करती थी? गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करती थी और इनसे उसके एवज में गुड्स खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब गोल्ड और सिल्वर का जो मतलब इंपोर्टिंग था ब्रिटेन से, वो काफ़ी कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब उनको बंगाल से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उससे उनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे, उनको परचेजिंग करने में ज़्यादा अमाउंट की नीड नहीं हो रही थी। सो इट कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। रेवेन्यू से वो आराम से कर ले रहे थे, इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर का जो इंपोर्टिंग था उसको उन्होंने बंद कर दिया। सो इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? जब गोल्ड एंड सिल्वर की इंपोर्टिंग बंद कर दी गई ब्रिटेन से, तो क्या हुआ? बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चली गई, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चली गई, क्योंकि अब इंपोर्ट नहीं हो रहा था उनके पास गोल्ड और सिल्वर का, और वो जो ये लोग गुड्स बेच रहे थे वो कम से कम रेट में बेच रहे थे, इसमें किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था बंगाल में। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि आर्टिसंस बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे बिकॉज दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स। उनको फोर्स किया जा रहा था गुड्स सेल करने के लिए कंपनी को लो प्राइसेस पर। इनको वही जो मैंने अभी बताया कि लो प्राइस पे ये लोग चीज़ें खरीद रहे थे कंपनी में, और जिससे कि आर्टिसंस को इससे बहुत लॉस हो रहा था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। और पीजेंट्स जो थे वो ड्यूज, वो जो उधार थे और जो कि लोन वगैरह लिया था पीजेंट्स ने, वो प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे थे वो कंपनी को, तो पीजेंट्स भी बहुत लॉस में जा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, और जितने भी आर्टिसंस थे वो दुखी हो रहे थे, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहे थे, उनकी प्रोडक्शन घटती जा रही थी। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। और इसी तरह एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन भी कोलैप्स हो रहा था, मतलब बर्बाद हो रहा था। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। और अचानक से फेमिन हो गया 1770 में बंगाल में, जिसकी वजह से 10 मिलियन पीपल किल्ड हो गए, मतलब डेथ हो गई उनकी। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब इस जगह पे नीड हो गई इम्प्रूव करने की एग्रीकल्चर को। इफ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, कुड द कंपनी बी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम? अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगा, इकोनॉमी प्रॉपर नहीं होगी, मतलब अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पीजेंट्स कहाँ से पे करेंगे? पे नहीं कर सकते वो लोग, टैक्सेस नहीं दे सकते, रेवेन्यू नहीं दे सकते। दैट्स वाई अब यहाँ पे ज़रूरत हो गई कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए ताकि पीजेंट्स हमें प्रॉपरली पे कर सकें रेवेन्यू। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. और बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे उनका सोचना था कि इन्वेस्टमेंट, हमें लैंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाए। तो क्योंकि अगर लैंड इम्प्रूव करेंगे, लैंड पर इन्वेस्ट करेंगे, लैंड पे पैसे लगाएंगे, तो डेफिनेटली लैंड एग्रीकल्चर के लिए एरिया ज़्यादा मिलेगा, और एरिया ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये चीज़ कैसे करनी होगी? आफ्टर 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. परमानेंट सेटलमेंट किया गया, मतलब बनाया गया, और ये बनाया किसने था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. ठीक है,
By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. अब इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, और ये सेटलमेंट हुआ कब था, 1793 में बाय कॉर्नवेलिस, ठीक है। तो अब इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग राजाज और तालुकदार्स जो थे उन्हें क्या करना था, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था एज जमींदार्स। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनका कहना था कि जमींदार जिनको हम बना रहे हैं अब उनका काम होगा कि वो रेंट कलेक्ट करें पीजेंट्स से और रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो कंपनी को दे दें। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। अब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया कि द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। अगर वहाँ पे 100 रुपीज़ अगर वो ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जस्ट, अगर 100 रुपीज़ उन्होंने फिक्स कर रखा है तो इट विल नॉट इंक्रीज 100 रुपीज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। और इन्होंने कह दिया कि जमींदार को कि अब आपके ऊपर है, आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप उससे हमें मतलब नहीं है। अगर 100 रुपीज़ पर पीजेंट से लेना है तो यू हैव टू टेक दैट, उसके बाद वो प्रॉफिट आप रखो और उसको लैंड के बेटरमेंट के लिए यूज करो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने फिक्स तो कर दिया परमानेंटली कि हाँ एक सॉरी कि अमाउंट फिक्स कर दिया इसका रेवेन्यू का, बट अब क्या हो रहा है, इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम encourage the zamindars to invest in improving the land. यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी को लगा कि ये चीज़ जो है एक रेगुलर फ्लो में रहेगी, मतलब रेगुलर रहेगी रेवेन्यू का मिलना, बट क्या हो गया कि सब कुछ चेंज हो गया। और इससे क्या इंकरेजमेंट मिली जमींदार्स को, टू इन्वेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लैंड। अब यहाँ पे कंपनी ये सोच रही है कि यहाँ पे रेगुलर फ्लो रहेगा और रेवेन्यू जो आएगा वो तो हमारा फिक्स है, और जो प्रॉफिट रहेगी वो जमींदार के पास जाएगी, और जमींदार क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट रहेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे फॉर इम्प्रूविंग द लैंड। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज नहीं हो सकती थी स्टेट की, तो जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। और अगर जमींदार, अब क्या है, जमींदार को ही सारा प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअली जमींदार वुड बेनिफिट, इस चीज़ का बेनिफिट सिर्फ जमींदार को ही मिल रहा था, क्योंकि अगर इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है लैंड से तो डेफिनेटली उस पर वो ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे और जितना फिक्स्ड अमाउंट है उतना उनको दे देंगे कंपनी को, और जो रिमेनिंग है वो खुद रख लेंगे। प्रॉब्लम इसमें भी आई, अगर जब ये परमानेंट सेटलमेंट बनाया गया तो इसमें भी प्रॉब्लम आई कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जमींदार उस पर जो लैंड की इम्प्रूवमेंट थी उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको प्रॉफिट हो रहा था वो खुद ले रहे थे, बट दे आर नॉट इम्प्रूविंग द लैंड। सो इससे प्रॉब्लम हो रही थी कंपनी को कि जमींदार को ही सारा प्रॉफिट हो रहा है, हम तो फिक्स कर चुके हैं रेवेन्यू, तो हमें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इस चीज़ का। So the permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land, जो कि मैंने अभी बताया कि improvement of land के लिए वो interested थे ही नहीं, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। The revenue that had been fixed was so high, जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा हाई था, that the zamindars found it difficult to pay, और उसको ज़मींदार डिफ़िकल्ट हो रहा था, उनको पे होने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी, और जो भी ज़मींदार जो होते थे वो अगर रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, और इसका ऑक्शन होता था, ज़मींदारी का ऑक्शन होता था, तो ये ज़मींदारी छीन कर किसी और को पास ऑन कर दी जाती थी। By the first decade of the 19th century, the situation changed. अब 19th century के first decade में क्या हुआ, situation पूरी बदल गई। The prices in the market rose. जो मार्केट में प्राइस था वो हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, रोज मतलब बढ़ जाना, ऊपर हो जाना। एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड, और कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार, अगेन जमींदार को ही सारा प्रॉफिट हो रहा था, उनकी इनकम बढ़ रही थी, बट नो गेन फॉर द कंपनी, कंपनी को लेकिन कोई भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि वो परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते थे, डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली।
इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, फिर भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था जमींदार्स को लैंड इम्प्रूव करने के लिए, जबकि प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा, फिर भी वो लैंड इम्प्रूव नहीं कर रहे थे. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, और कुछ ने अपने लैंड्स खो दिए सेटलमेंट के अर्ली ईयर्स में. अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. कोई भी जमींदार जो है इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं लेना चाहता था. एज लॉन्ग एज द जमींदार्स could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. वो रेंट तो ले रहे थे जमींदार्स, could give out the land to tenants, tenants को लैंड दे रहे थे और उन पर रेंट भी ले रहे थे, बट लैंड को इम्प्रूव करने में उनको किसी टाइप का इंटरेस्ट नहीं होता था. On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. Oppressive means बिल्कुल नीचे कर देना, मतलब बिल्कुल कम कर देना. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. To pay the rent he had to often take a loan from the money lender. उस समय बैंक्स वगैरह नहीं होते थे तो मनी लेंडर्स लोन देते थे. And when he failed to pay the rent he was evicted. Evicted मतलब निकाल दिया जाता था. From the land मतलब लैंड को उनको छोड़ देना होता था. He had cultivated for generations, जो कि वो जनरेशन से उस पर कल्टिवेशन करते आ रहे थे. ठीक है, तो इसलिए पीजेंट्स को लगा, जो कल्टिवेटर्स थे उनको लगा कि ये तो जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, मतलब हम डाउन होते जा रहे हैं इससे, मतलब बहुत ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ये जो रेंट था जो कि ज़मींदार को पे करना पड़ता था ये बहुत ही ज़्यादा हाई था, और जो कि वो पे नहीं कर पाते थे, और उनकी जो ज़मीनें हुआ करती थी वो भी एक तरह से उनको फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि अगर वो रेंट नहीं पे करते थे तो लैंड जो है ज़मींदार उनको एक्वायर कर लेते थे, मतलब ले लेते थे, कंपनी ले लेती थी उसको. टू पे द रेंट, अब रेंट देने के लिए वो लोन लेते थे, किससे? मनी लेंडर से. अगर वो फेल हो जाते थे मनी लेंडर को लोन वापस मतलब पैसे देने में, रेंट देने पे, रेंट देने के लिए अगर फेल होते थे जमींदार को तो उनको उनके लैंड को छोड़ना पड़ता था, जो कि वो कई जनरेशन से कल्टीवेट करते आ रहे होते थे. अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड. अब इसके बाद एक न्यू सिस्टम आया, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इससे कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम डेवलप किया. और ये कौन सा सिस्टम था? महलवारी सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे महलवारी सिस्टम आ गया. द गवर्नमेंट ऑफ विलियम बेंटिंक्ट, उस समय विलियम बेंटिंक्ट की गवर्नमेंट थी, मेड अ थोरो रिवीजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1823 एंड thus the महलवारी सिस्टम was introduced. They realized that the result of the regulation of 1822 was nothing other than widespread misery. उसके बाद आफ्टर अ प्रोलॉन्ग कंसल्टेशन, बहुत सारी बातें हो गई, देन द गवर्नमेंट फाइनली पास्ड अ न्यू रेगुलेशन इन 1833. 33 में न्यू रेगुलेशन आ गया. द महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने और रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग ने. ठीक है, ये दो नाम आपको लर्न करने होंगे कि महलवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी एंड रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग ने. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द टॉपिक. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को 19th सेंचुरी के बाद लगने लग गया, 19th सेंचुरी तक लगने लग गया कि अब रेवेन्यू सिस्टम चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें किसी टाइप का प्रॉफिट नहीं हो रहा इससे. हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade. अब जबकि बहुत ज़्यादा कंपनी को अमाउंट चाहिए था फॉर इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, ट्रेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस चाहिए थे, बहुत सारा मनी चाहिए था, तो दे वांट टू चेंज द सिस्टम बिकॉज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम दे आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट. In the northwestern provinces of the बंगाल प्रेसिडेंसी क्या, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश, और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी का बहुत सारा पार्ट है उत्तर प्रदेश में काउंट किया जाता है. एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved.
अब इनको लग रहा था कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी जो है इसको यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन विलेजेस के, तो इस वजह से इनको लगा कि इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village को महल कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, had to pay. Now in this part of the chapter it is saying that कि जब 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने एक सिस्टम स्टार्ट किया तो उनके अकॉर्डिंग कलेक्टर्स उन्होंने बनाए, जो कि क्या किया जाने लगा, कलेक्टर्स को विलेज टू विलेज भेजा जाने लगा। विलेज यहाँ पे महल के लिए कहा गया है, विलेज टू विलेज भेजा गया ताकि वो लोग जाएं और अलग अलग जगहों पर लैंड को इंस्पेक्ट करें, उनकी फील्ड्स को नापें, मेजर करें और उनके कस्टम्स और राइट्स को रिकॉर्ड करें। वो सारा चीज़ मतलब एक रिकॉर्ड बनाकर लेकर आए और उसके बाद उसको दिखाएं कि क्या चीज़ थी, कंपनी को शो करें। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, और ये चीज़ें जो है रेगुलरली पीरियोडिकली होने लगी। परमानेंटली फिक्स नहीं था ये रेवेन्यू। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब यहाँ पे कंपनी ने जमींदार को स्टॉप कर दिया क्योंकि जमींदारी के थ्रू इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पे इन्होंने एक विलेज हेडमैन बनाया जो कि सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और कंपनी को ले जाकर दे देता था। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम, और इसी सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहते थे। मतलब यहाँ पे बहुत ही अजीब टाइप का सिस्टम था। यहाँ पे जमींदार की वजह से इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, दैट्स वाई इन्होंने जमींदार के थ्रू ये सिस्टम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे इनको एक विलेज हेडमैन बनाना पड़ा अपनी ओर से, जो कि इनको सारी इंफॉर्मेशन फील्ड के रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग देता था जाके, और जो भी कलेक्ट करता था रेवेन्यू वो सारा कुछ ले जाके कंपनी को हैंड ओवर करता था। उसके बाद आया मुनरो सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट हुआ। फिर महलवारी सिस्टम आया, ये भी स्पॉइल हो गया, ये भी किसी काम का नहीं रहा। देन मुनरो सिस्टम आया। मुनरो सिस्टम में क्या था, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Ryotwar or Ryotwari, means इसको Ryotwari system कहा गया। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed. ये स्मॉल स्केल पर किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। इसको सिर्फ ट्राई किया था इन्होंने एक्चुअली स्मॉल स्केल पर। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विथ टीपू सुल्तान। जहाँ जहाँ टीपू सुल्तान के साथ वॉर के बाद इन्होंने जिस एरिया में टेक ओवर किया था उस एरिया में कुछ पार्ट में उन्होंने कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये सिस्टम चलाया, रियोतवारी सिस्टम। देन सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, मुनरो का पूरा नाम थॉमस मुनरो था। ये सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ ऑल ओवर साउथ इंडिया, ये ज़्यादातर साउथ इंडिया के पोर्शन में एक्सटेंड किया गया। रीड एंड मुनरो फेल दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। वहाँ पे देखा इन्होंने साउथ में, अब ये दोनों साउथ में गए रीड और मुनरो, वहाँ इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार, नॉर्थ में तो हमने देखा कि पहले से ही जमींदार हुआ करते थे, बट साउथ इंडिया में कोई जमींदार नहीं हुआ करता था। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। अब इन्होंने क्या सेटलमेंट बनाया, सेटलमेंट ये किया कि इन्होंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया किससे, कल्टिवेटर्स से। कल्टिवेटर्स आर कॉल्ड एज र्योट्स। हु हैड टिल मीन्स प्लाव करना, खेती करना मीन्स जुताई करना। द लैंड फॉर जनरेशंस, जो कि र्योट्स होते थे वो टिल करते थे काफ़ी जनरेशन से लैंड को। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। और वो प्रॉपरली ज़मीन को स्टडी करते थे, उसको सर्वे करते थे, उसके बाद वहाँ पे असेसमेंट होता था। किसी भी तरीके का रेवेन्यू असेसमेंट उसके बाद ही होता था। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figures protecting the riots under their charge। अब ये रियोट्स को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता था वो इनके प्रॉफिट में जाता था रेवेन्यू के थ्रू,
और वॉज नॉट वेल, और अगेन ये रियायत सिस्टम भी सक्सेस नहीं रहा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने लगी? विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू systems were imposed, it was clear that all was not well with them. कुछ भी जो peasants थे, जो cultivators थे, उनके संग कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि revenue demand जो कंपनी की थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। Peasants were unable to pay, जो कि peasants पे नहीं कर पाते थे। रियॉट्स फ्लेड द कंट्री साइड, और इसकी वजह से जब वो रेंट पे नहीं कर पाते थे तो उन्होंने कंट्री साइड जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कंट्री साइड को छोड़ दिया, सारे विलेजेस बिल्कुल खाली हो गए, बिल्कुल डेजर्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि रियॉट्स वहाँ से छोड़कर चले गए थे, उस पर्टिकुलर रीजन को किसी और रीजन में जाके बस गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। Optimistic officials had imagined that the new systems would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. कुछ ऑप्टिमिस्टिक जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको क्या लगा, वो इमेजिन करने लगे कि अगर हम न्यू सिस्टम लेकर आएंगे, एक नया सिस्टम लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली पीजेंट्स रिच विल चेंज इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, वो काफ़ी रिच हो जाएंगे। बट अगेन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। So students, go through the chapter again, read it properly and understand it. Okay, thanks for listening. That's all for today.